Let's begin this awesome podcast. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड आई थिंक दिस हैज बीन एन एज ओल्ड मिस्ट्री, एज ओल्ड डिबेट कि क्या ऊपर आएगा, फंडामेंटल्स या टेक्निकल. सम आर टेक्नो फंडा ट्रेडर्स, सम आर प्योर फंडामेंटल ट्रेडर्स, सम बिलीव इन जस्ट टेक्निकल्स की भाव भगवान छे. So we're gonna discuss this. It's gonna be a friendly conversation. Hopefully there won't be too many sparks today. But let's begin this awesome podcast. I won't take much time. I am Vishu. मेरे साथ बहुत special guests हैं. We have the famous Davinder Khurana sir. आपके returns have been mind blowing. ऐसे ट्रिंकर पे एक बार आप ट्रिंकर के पोर्टफोलियो में टॉप पे चढ़ गए तो मतलब नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा आपका पोर्टफोलियो. यू हैव बीन द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर since the very beginning. Kudos to you, sir. मतलब what brilliant calls you have. And we also, right. Yeah, thank you. Market is And kind to me, that's what I can say. नहीं सर, कुछ तो ये आपका टैलेंट भी है सर. ऐसे काइंड तो सबके लिए था और अभी पिछले कुछ दिनों में तो किसी के लिए काइंड नहीं था मार्केट. बट योर प्रॉफिट्स हैव स्टिल बीन मतलब ऐसे ऑन द वेरी टॉप. Yeah, thanks for that. We also have Sagar with us. Sagar is a very good friend of mine and a very, so the beauty about Sagar is ki he's so young and so successful. I mean, right from the way he trades, the calls he gives to, and the huge fan following which he calls his friends and bhai log. So he has is absolutely brilliant, and I'm very sure that he's gonna scale heights like anything. So we'll also have very soon Arpit, the price volume trader, joining us. And till then, I think we can quickly begin. So, Davinder sir, please, would you take off the topic for the day? Kuch aap, let's begin with you. Technicals versus fundamentals. I think आप पहले fundamental trader थे and then you went for technicals. So Yeah, you will, I think, have a very balanced and a very good opinion on this. okay. So, okay, I'll start with this thing. So, matlab, yeah, I mean, I know like this is a old age topic for discussion कि fundamental investor बनना चाहिए या फिर technical investor बनना चाहिए, right? तो my mindset says is कि आप जो भी बनो, become best at it. मतलब आप average मत बनो. So becoming best at fundamental investing is a little difficult, I would say, compared to a price action trader or a technical analyst. The thing is, like there are so many type of business models, right, which you need to understand. And one thing is you understand the business model. The second thing is you need to understand like how that business model can scale. So that's the most difficult part for any beginner or any you can say experienced trader also. So you found a good business. आपने एक अच्छा business find किया. So how will you identify कि वो business scale करेगा या नहीं करेगा? How will you find कि can it add more distribution channels, right? So can it become a global player from an Indian player? तो वो सब चीजें like these are the things which are kind of an anticipation. तो अगर आप fundamental investor हो and you buy some stocks based on anticipation, तो उसमें क्या होता है कि the biggest risk is आपने जो एंटिसिपेट किया है देयर इज हाई पॉसिबिलिटी कि जो लोग स्टॉक को मूव करते हैं दे डोंट हैव द सेम फीलिंग, राइट? तो वहां पे एक गैप है. तो आपने एक स्टॉक अच्छा फाइंड कर लिया, आपको लगता है कि ये फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, बट अभी क्या है स्मार्ट मनी उस पर फोकस नहीं है. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप 3 साल 4 साल उस स्टॉक पे उसी प्राइस पे बैठे रहे, एवरेज करते रहे, और 4 साल के बाद वो स्टॉक बढ़ना स्टार्ट हुआ, राइट? सो आफ्टर दैट लेट्स से इन द ईयर 4th ईयर यू एग्जिटेड दैट स्टॉक्स थिंकिंग कि यू नो हाउ मच आई कैन वेट, और उसके बाद इट स्टार्ट्स टू मूव अप. सो फंडामेंटल इन्वेस्टिंग फॉर मी इज काइंड ऑफ मोर पेनफुल इन्वेस्टिंग. बट अब मैं ये नहीं कह रहा कि लाइक इट्स अ रॉन्ग वे ऑफ इन्वेस्टिंग. A lot of people do that and a lot of people are successful in that also. The good thing about fundamental investing is you buy stocks very cheap. And for technical traders or technical momentum investors, हम लोगों को एक trend चाहिए होता है. Like we wait for a certain trend to set up. We cannot just jump into the boat at the very beginning. So yeah, there are some favorable factors for a fundamental investor. There are favorable factors for technical investors. But again, like whatever the way you choose, try to become best at it. So if you don't become best at it, your returns will be also average.
So this is my theory about like going into the stock market. अभी क्या है कि like so I covered about the fundamental part, right? So technical में क्या है कि a lot of things are visible on the stock chart. Okay, so जो stocks मतलब आगे move करेगा ना, उसकी characteristics you can identify from the charts based on the volumes, based on like people who are sitting into that stock, right? So if there are strong hands into the stock, then there is a possibility, high possibility of that stocks giving you high returns. So that is an advantage with the technical aspect of the stock investing. And one more important point is you can actually very much time your trades. मतलब कौन सा stock आपको किस time पे buy करना है, तो you'll get very good signals for that. Right. तो अभी आप में अगर मतलब if you are buying it at a good price, तो आपकी जो risk होती है वो थोड़ी कम हो जाती है. Let's say if I'm buying at any price, right? So next few days stock drops 10% or 15%. So you started with a 15% loss. But अगर if your buying is little right or little perfect, so there is a high possibility कि आपका stock the day you buy it will go up. So you have a cushion of 5 to 7% or 8% or 10% in your hand. तो आपका risk जो होता है वो manage हो जाता है. But again, like both of them are good. The thing is, whatever the way one want to choose, just try to become best at it. That's what I would say. Brilliantly put, sir. I mean, brilliantly put. A very balanced view and a very nice analysis. Yeah. Sagar, what are your views on it? On fundamental and technicals? Yes, fundamentals was. I think you are a through and through technical trader. Yeah. So basically, I agree with Davinder sir because I'm chasing momentum. क्योंकि momentum पे पैसा बनता है. If you like put, अगर आपने पैसा डाल दिया block करके रखा हुआ है, जिससे बहुत सारे लोग इन्वेस्टेड होते हैं, बहुत टाइम के लिए उनका स्टॉक मूव ही नहीं करता है और वो ऑल्सो पैनिक में भी होता है. ऑल्सो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं वही पैनिक में रहते हैं, लोगों से व्यूज पूछते हैं कि क्या करें सर क्या करें, राइट? सबके पास डीएम्स आते होंगे, रविंद्र सर के पास भी आते होंगे, अर्पित सर के पास भी आते होंगे, राइट? तो दे आर कंफ्यूज, राइट? उनको नहीं पता किस प्राइस पे घुसे हैं, क्या वो बस कुछ न्यूज पे स्टॉक्स में देख लिया. किसी के फंडामेंटल्स भी बहुत सारे स्टॉक्स के अच्छे हैं बट वो मूव नहीं कर रहे हैं. आप टेक्सटाइल के देखोगे बहुत सारे फंडामेंटल अच्छे हैं बट वो मूव नहीं करे, राइट? तो उस बेसिस पे आप देखोगे तो नहीं. बट अगर मैं बात करूं मोमेंटम, अगर आप चेस कर रहे हो तो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर प्राइस और वॉल्यूम आपको इंडिकेट दे रहा है लाइक बीसीजी किसी ने नहीं पकड़ा. जनरल पॉली की अगर मैं बात करूं, जनरल पॉली का अगर कोई चार्ट उठा के दिखेगा तो वो डाउन फेज में था बहुत टाइम से. उसके बाद जब उसने फॉलिंग वेज का जब ब्रेकआउट दिया उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसने मोर देन 500% का रिटर्न दे दिया. ठीक है, रोज यूज किया, आज भी यूज किया उसमें. ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं. एनआरबीएल ने आज ब्रेकआउट दिया, आज बहुत सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दिया. तो दीज आर द स्टॉक्स जो बहुत अच्छे मूव दे सकते हैं. मतलब कि पैसा कहाँ शिफ्ट हो रहा है वो आपको टेक्निकल से पता चलता है. और पैसा तभी बनता है जब आप सही जगह पे बैठे हो, राइट? जहाँ पे स्मार्ट मनी मूव कर रही है उनके साथ में रहोगे तो यू विल मेक मनी, अदरवाइज आपका पैसा स्टक ही है. सो आई बिलीव इन टेक्निकल्स ज्यादा. एंड आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए फंडामेंटल्स का, बिकॉज इन अ वर्स्ट सिनेरियो कभी कुछ होता है तो आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि कंपनीज अच्छी है या नहीं. इन द वर्स्ट का सिनेरियो अगर मैं इसके अंदर स्टक रहता हूँ फॉर 1 to 3 months या थोड़ा लॉन्गर होराइजन पे, तो मैं लॉस ना खाऊं ज्यादा. जैसे कुछ ज्यादा ये लिक्विड स्टॉक होते हैं जो जिनके स्प्रेड्स बहुत बड़े होते हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे दिखते हैं बट स्प्रेड इज टू बिग, तो लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. तो थोड़ा बहुत आपका बेसिक फंडामेंटल का नॉलेज भी होता है तो इट्स गुड. अगर आपको थोड़ा नॉलेज उसका और थोड़ा टेक्निकल, तो इट्स गुड फॉर यू. तो गो विद टेक्निकल्स. Right, absolutely. So technicals पे mostly, but just in case आप फंस जाओ तो फिर आपको fundamentals का backup रहना चाहिए थोड़ा बहुत. Yeah. Absolutely brilliant. So we also have the brilliant price volume trader has also joined us. Arpit sir, what are your views on it? Hi. ठीक है. तो like fundamental and technical. So first of all like दोनों से पैसे बनते हैं, fundamental हो चाहे technical. तो अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो फंडामेंटल में मेरे हिसाब से लर्निंग कर्व ज्यादा है एज कंपेयर टू टेक्निकल्स. तो ये फंडामेंटल्स में आपको काफी सारा रेशो समझना पड़ता है, पी रेशो, प्रमोटर होल्डिंग, आरओसी, आरओई, जो मेरे ख्याल से मोर ऑफ लाइक फॉर्मल एजुकेशन अगर जिसके पास इस चीज में बेटर हो, जैसे मोस्टली कुछ सीएज हो गए या फिर आपका कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड,
उन लोगों को ज्यादा समझने में इजी होता है एज कम्पेयर टू जैसे कि हम कोई आईटी बैकग्राउंड से है या कोई और किसी लाइक इलेक्ट्रिकल सिविल इंजीनियरिंग या कोई भी डॉक्टर इन बैकग्राउंड से आप टेक्निकल काफी चार्ट का लैंग्वेज काफी इजीली समझ सकते हो। या मान लो कोई सेटअप आपने बनाया बैक टेस्ट करके कि 10 साल के डेटा पे कि अगर ये इंडिकेटर ऐसे होता है या कोई प्राइस एक्शन ऐसे होता है तो इस चीज में ऐसे होता है, जबकि आप उसमें आप अगर करोगे फंडामेंटल में आप बोलोगे एक चीज है कि प्रमोटर होल्डिंग 50% से ज्यादा होनी चाहिए, ये अच्छा है, ठीक है। अब आप एक स्टॉक में देखोगे प्रमोटर होल्डिंग तो 20% ही है, बट ठीक है, फिर कोई इन्वेस्टर बोलेगा नहीं नहीं इसमें एफआई का तो 50% है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें एन नंबर ऑफ केसेस हैं, तो इसका जो थोड़ा फॉर्मल एजुकेशन अगर जिसका बेटर हो तो मेरे हिसाब से वो इसको ज्यादा अच्छे से समझता है एज कम्पेयर टू लाइक टेक्निकल। उसमें आपको बहुत छोटा लर्निंग कर्व है। दूसरा पेशेंस, 90% ऑफ लोगों के पास तो पेशेंस ही नहीं इतना कि वो उसको होल्ड कर पाए, ले और होल्ड कर लें। क्योंकि टेक्निकल में तो आप मोमेंटम पकड़ते हो, ट्रेंड एक पकड़ के एक मोमेंटम पकड़ते हो और बहुत जल्दी रिटर्न जनरेट करने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ आरती ड्रग, फंडामेंटल बहुत अच्छा था बट 5 ईयर्स तक कोई कंसोलिडेशन नहीं रहा और जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया तो वो 800 का उस 3000 आई गेस पहुंच गया था, तो 3x वो अराउंड हो गया कुछ ही मंथ्स में। तो ये करना इज लाइक मोर ऑफ जॉयफुल थिंग एंड जैसे कि देवेंद्र सर ने कहा इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ लाइक पेनफुल थिंग। तो इसलिए मोस्टली लोग आजकल यहाँ पे जो टेक्निकल्स पे जा रहे हैं। तीसरा जेनरिक चीज, अभी जैसे कि आप अगर फंडामेंटल करते हो तो अगर आपको ऑटो सेक्टर अभी कब चलेगा वो समझना है तो आपको अलग पूरा ऑटो सेक्टर स्टडी करके आना पड़ेगा। आपको पीएसयू बैंक समझना है तो आपको फिर पूरा वो स्टडी करके आना पड़ेगा। प्राइवेट बैंक स्टडी करना पड़ेगा फॉर्म। यहाँ पे जब आप एक बार चार्ट सीखते हो अपना पूरा कि कैसे मैं ब्रेकआउट देखूँ या फॉर एग्जाम्पल पैटर्न देखूँ, तो अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया कि पीएसयू बैंक्स में हमें एक रेक्टेंगल का ब्रेकआउट मिला, तो हमें वो था। अब सेम चीज हमें ऑटो में मिली, तो एक जेनरिक चीज है। मेरे को सारे बिजनेस अलग अलग समझने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज से मेरा काम हो रहा है, बस मेरे को वो ब्रेकआउट थ्योरी अच्छे से करना है, उसका ब्रेकआउट उसका वो करना है प्रैक्टिस, और मेरा काम हो जाएगा। मेरे को सारे बिजनेस पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये मेरे कुछ लाइक पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट है। एक जेनरिक, दूसरा पेशेंस एंड तीसरा लाइक लर्निंग कर। मेरे हिसाब से टेक्निकल्स में कम है एज कम्पेयर टू लाइक फंडामेंटल्स। ओके, राइट। Brilliant. And from a retail investor जो कि इस तरीके से एक कॉमन मैन जो हम लोग कहते हैं वो अगर घुसना चाहते हैं तो उनके लिए of course that would be a better choice if you have no idea then. Yeah. Right. Absolutely brilliant. So my next question would be, do you like I'll go to Davendra sir, आपसे पूछूंगा कि do you follow any news whatsoever at all? Like No, I don't follow any news. Last so do time you? I think I watched any business channel or any channel related to stock market or yeah, I would say maybe 7 or 8 years back. Yeah, So I don't follow any news. Do you think fundamental investors को भी के लिए भी न्यूज होती है या न्यूज किसी के लिए भी नहीं होती, दोनों में से? सर मैं एक सिंपल सी बात आपको बताऊंगा, हर एक इंसान के पास ना एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। वो ट्रेडिंग प्लान चाहे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे है या फिर वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे है। तो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स के बेसिस पे क्या हो सकता है कि मैं एक कंपनी बाय कर रहा हूँ, राइट। सो माय फर्स्ट क्राइटेरिया कुड बी कि मैं वैसी कंपनी बाय करूंगा विच इज ग्रोइंग एट 30%, राइट। मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। दिस इज हाउ अ ट्रेडिंग प्लान विल लुक लाइक। इट विल बी अ you can say decision tree, simple decision tree based on if and else conditions. तो मेरा एक डिसीजन ट्री किसके बेसिस पे मैं बिल्ड कर सकता हूँ कि आई विल बी बाइंग ओनली दोस कंपनीज व्हिच आर ग्रोइंग एट 30%. So that would be my first criteria. Second criteria would be, let's say they are non cyclical companies, ठीक है। तो मैं second criteria वो ऐड कर देता हूँ। For example, right, so I want to buy only those companies which are from consumer goods or which are from FMCG or which are from you can say automobile, and all these are like cyclicals, right? So let's say I filter out those stocks and then I'm going to buy those stocks based on the fundamental criteria. उसके बाद मैं PEG रेशियो लगाता हूँ, पेग रेशियो जिसको बोलते हैं, कि उसकी ग्रोथ सस्टेन हो रही है या नहीं हो रही, like whether you know companies प्राइस इज ऑल्सो वैल्यू, मतलब उसमें थोड़ी वैल्यू है, लाइक
peg is under 1.5 something like that, और I will put some more filters कि उसकी ROE 10 से ज़्यादा है और ROCE 15 से ज़्यादा है, companies generating positive cash flows. So based on certain conditions you can define your one criteria कि मेरे को यही companies buy करनी है. Second thing is अभी आप उसको ट्रैक कैसे करोगे और एसएल कैसे ट्रेल करोगे उनमें. So if any of those condition nullifies after next quarter result or after 6 months, तो you give them some time. तो अगर वो उनमें से एक भी कंडीशन नलीफाई होती है then that stock goes out from your portfolio. ठीक है, तो ऐसे आपको एक प्लान बनाना is very important. ट्रेडिंग प्लान होना बहुत जरूरी है. Like you should know कि why you are buying that stock, when you are buying that stock, when you are going to sell that stock. अगर वो प्लान आप फंडामेंटली बनाते हो, टेक्निकली बनाते हो, then you are a good trader. You are at least following some rules. And अगर रूल ब्रेक होता है तो you will try to improve your rules. अगर आपको पता ही नहीं कि मेरे को इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है, then how will you become better version of your, right? Right. So same is with the technical. अगर मैं कुछ technical buy कर रहा हूँ, let's say I'm buying only those stocks which are pulling back to 50-day moving average and they have not broken their 50-day moving average from last 3 months or last 6 months. तो वो मेरी एक condition बन सकती है. So my stop loss would be कि अगर वो 10% नीचे गिरते हैं 50-day moving average से, I will sell that. So this is a simple trading plan. Okay, तो ऐसा एक trading plan होना is very important. So if you have a trading plan, you're not emotionally attached to any stock. आप अपने रूल्स के बेसिस पे ट्रेडिंग कर रहे हो, आप अपने रूल्स के बेसिस पे इन्वेस्टिंग कर रहे हो. अगर आपके रूल्स में कुछ चेंज आए, you're buying that stock or you're selling that stock. So that decision becomes very easy for you. तो you will not be mentally attached to any stock कि मुझे ये सेल नहीं करना, मैंने ये तो बहुत सारा रिसर्च करके इसको बाय किया था. तो those decisions will be very easy for you to take. तो I would suggest कि have a trading plan which is very very important. अब आप उस पे improve करते रहो and you'll become better with time. That's it. Right. Absolutely brilliant, sir. I mean, basically, if वो plan है and you have to stick to it without any और वो plan इतना strong होना चाहिए, conviction होना चाहिए कि वो emotions ना उसको affect कर पाए. So, okay. सागर, आप I guess news में तो आप believe नहीं करते होगे. Do you follow? लेकिन आप जैसे अगर कुछ ये track कर रहे हो, तो do you use any fundamentals for your trades? नो बिल्कुल मैं न्यूज़ नहीं देखता. मैं बिल्कुल भी न्यूज़ नहीं देखता. Any fundamental things you look for in your technicals, like maybe कि कुछ particular size हो कंपनी का या कुछ भी? पर्सनली मैं कभी कभी देखता हूँ जब मेरे को थोड़ा सा लॉन्ग हराइजन पे जाना होता है तो मैं ROC और ROE देख लेता हूँ कि उनका रिटर्न ऑन इक्विटी और कैसा है, ज्यादा डेट तो नहीं कंपनीज में, तो आई प्रीफर दैट क्योंकि वो अगर भागती है तो बहुत फास्ट भागती है और अगर मार्केट गिर रहा है और उसके फंडामेंटल्स गुड हैं तो वो जैसे अभी नौकरी अगर गिरा हुआ है तो बहुत अच्छा सपोर्ट पे, अगर किसी को बाय करता है कोई तो वो बहुत जल्दी जब मार्केट में मूव आएगा तो बहुत जल्दी बाउंस बैक करेगा, राइट, क्योंकि फंडामेंटली ऑल्सो गुड और डिस्काउंट पे. तो कुछ ऐसे ट्रेड आपको जब मिलते हैं तो ज्यादा अच्छा पैसा बनता है. तो आई बिलीव इन दैट. तो थोड़ा बहुत फंडामेंटल अगर आप चेक करते हो, बेसिक फंडामेंटल, आई डोंट से क्योंकि मेरे को इतना ज्यादा नहीं आता बिकॉज आई एम बैकग्राउंड ऑफ इंजीनियरिंग, सो आई डोंट नो अबाउट कॉमर्स वाला सीन. तो उस हिसाब से मेरे को थोड़ा बहुत बेसिक आता है, वो बहुत अच्छा वर्क करता है अगर आप चार्ट के साथ में दोनों को मिक्सअप करते हो. तो ऐसा नहीं कि आपको हार्डकोर फंडामेंटल ही आना चाहिए. पर्सनली आई बिलीव इन दैट. तो वो वर्क करता है. तो आई एम लाइक ऑल्सो मैं जब पॉडकास्ट रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे को रीड करना पड़ता है क्योंकि कंटेंट में क्या दूँ मैं, मतलब लाइक इंडाइसेस व्यू के बाद में तो थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ कि ये चीजें हो रही है मार्केट में, आप यहाँ पे नजर रख सकते हो, राइट. तो थोड़ा बहुत अभी कभी मैं पढ़ रहा हूँ जैसे बस स्टार्टिंग हेडलाइंस, बस नथिंग एल्स. तो बस वही चीज मैं देखता हूँ. या एज ऑफ नाउ. तो आप कोई, लेकिन अगर जैसे लेट्स से क्यूज लेते हो क्या, जैसे अभी IRCTC में लोगों ने बोला कि बड़ा मूव आने वाला है, तो मे बी इवन अगर कुछ स्टॉक में तो उसका चार्ट आपने देख लिया या वो भी नहीं? हाँ मैं वो जरूर देख लेता हूँ बिकॉज एक्चुअली क्या होता है कि आपको पता ही है, राइट, कि मैं बहुत सारे चार्ट्स देखता हूँ दिन भर में. अभी मैं स्क्रीन के सामने हूँ, मैं डाउ को फॉलो कर रहा हूँ अभी बैठे बैठे आपसे बात करते हुए. तो आई एम चेकिंग द चार्ट्स, तो आई नो कि कहाँ पे मूव हो रहा है. ऑल्सो जब भी कोई डेज हाई ब्रेक करता है, जैसे आज अगर मैं बात करूँ कुछ स्टॉक्स है जो मेरे रेडार पे हैं, जैसे वेदांता है, पावर ग्रिड है, JSW स्टील, भारती एयरटेल, बीसॉफ्ट, टावर. दीज आर द स्टॉक्स इन्होंने 8-10 दिन के हाईज ब्रेक करे हैं और उनमें लॉन्ग बिल्डअप हुआ है. FNO. अगर मैं कैश स्टॉक की बात करूँ तो लवेबल है, रेमंड है एंड बीसॉफ्ट है. NR बियरिंग के अंदर में न्यूज है उसके कारण वो भाग रहा है.
प्री कैम है, दीज आर द स्टॉक्स इन्होंने बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स दिए, अगर किसी को बाय करना होता है तो वो बाय कर सकते। तो ऐसे में कुछ अपनी वॉच लिस्ट में डालता रहता हूँ, तो मेरे को पता रहता है कि कहाँ पे हो रहा है। जैसे आईआरसीटीसी की अपने लास्ट टाइम पे बात की थी, राइट, तो मैंने बोला था कि आईआरसीटीसी में कभी बाय नहीं करने वाला इस प्राइस पे, तो 6,000 7,000 पर, और उसके अगले दिन से वो गिरना चालू और 800 के आसपास में दिखा था, और वी टॉक्ड ऑल्सो, राइट। तो जैसे सेम पेटीएम का था, ग्रे मार्केट प्राइसेस से पहले ही पता चल गया था कि वो अच्छा नहीं आएगा, और ऑल्सो उसके फंडामेंटल्स पहले से ही लोगों को पता था, बट पीपल आर बाइंग। सो थोड़ा बहुत फंडामेंटल मैटर करता है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल मैटर नहीं करता। और ऐसे कुछ स्टॉक्स एंड टेक्निकल्स अगर आप देखोगे तो उन्होंने यूसी मतलब छोड़े ही नहीं है, मतलब बहुत सारे स्टॉक्स है जिन्होंने अभी तक 2,000 4,000% दे दिए और वो अभी भी जाए जा रहे हैं वो। तो कोई अगर टेक्निकल देख रहा है कि चलो ठीक है उसने थोड़ा बहुत करेक्ट किया उसके बाद अपन ले ले, तो वो भी सही प्राइस नहीं, क्योंकि बहुत ओवर स्ट्रेच है ना। तो अगर रैली आ रही है तो उसको थोड़ा सा कम डाउन होना चाहिए, वो कम डाउन होगा तभी वो बहुत पावर से भागेगा, बाउंस बैक रिबाउंड करेगा। अगर वो सीधा जा रहा है, वो स्ट्रेंथ हो रहा है, क्योंकि इफ यू आर अ रनर तो आप भागे जा रहे हो 5-10 किलोमीटर भाग लिए, तो आपकी स्ट्रेंथ खत्म होगी ना, वहाँ पे आपको ब्रेक तो चाहिए कि मैं थोड़ा सा रिचार्ज हो जाए एंड देन फिर वापस भाग लो। तो वो पॉइंट नहीं आता कुछ स्टॉक्स में। तो जैसे अगर आप देखो अपने डाउ का, अगर आप चार्ट अगर आप देखो टोटल, तो वो सीधा सीधा जा रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो फ्लैट में या अपर चैनल के अंदर मूव कर रहा है, तो वो अभी थोड़ा स्लाइटली सपोर्ट पे आ रहा है। तो माइट भी चांसेस कि अपन थोड़ा अगर करेक्शन देखें थोड़ा सा ज्यादा इन यूएस मार्केट की बात करूँ, तो वहां से अगर अच्छी रैली मिलती तो अपने लिए बहुत अच्छा है, वरना अपन थोड़ा सा टाइम पास कर सकते हैं इन फैब जैन तक, राइट, बिकॉज ऑफ द चार्ज। तो ये मेरा व्यू है, मतलब पर्सनली आई बिलीव इन दैट। राइट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच। अर्पित सर, आपसे भी मैं सेम क्वेश्चन पूछूंगा कि आप भी कुछ क्यूज लेते हो क्या न्यूज से, या फिर इट्स प्योरली नहीं कि न्यूज इज अ प्योर नो नो? हेलो, am I audible? You are audible. There seems to be a problem with that. Yeah, you are audible. Audible. All right. Okay, maybe he's facing some technical difficulties. Meanwhile, Davinder sir, मैं आपसे एक और चीज पूछूंगा. So you have, I recently saw your face to face as well, and मतलब you have become, you have always been, and the world has seen what a rockstar you have recently. So आपने एक बहुत ही beautiful analysis में IPOs पे दिया था कि मे बी लिस्टिंग गेन्स के ऊपर ही भागने के बजाय देयर इज अ राइट टाइम टू एंटर इन इट, एंड देन इट वाज अ ब्रिलियंट एनालिसिस. तो मतलब उसमें आप उस एनालिसिस में फंडामेंटल्स वर्सेस टेक्निकल्स के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? Okay. So yeah, thanks for the appreciation first of all. I received so much love from so many people, and really, yeah, thank you to everyone who watched and who spent there like 1 hour and watched the video. Okay. So again, coming back to the fundamental aspect of investing. Am I audible clearly? Yes, you are, sir. Okay, I was getting some noise, so yeah. Okay. तो बेसिकली वही है, मतलब प्रिंसिपल इज, अंडरलाइंग प्रिंसिपल इज सेम. मेरे लिए जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है, इट इज डिमांड. तो अगर किसी स्टॉक में डिमांड है तो इट इज विजिबल क्लियरली ऑन द चार्ट्स. तो आई ऑलवेज से कि चार्ट्स आर योर रिपोर्ट कार्ड. अगर कोई स्टूडेंट क्लास में फर्स्ट आता है तो आप उसको ये नहीं पूछते कि आपके मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं, आपके इंग्लिश में कितने मार्क्स आए हैं, राइट? इफ ही हैज स्कोर फर्स्ट तो ही इज डूइंग एक्सीलेंट. सो द सेम इज द केस विथ स्टॉक्स. तो जो स्टॉक्स मतलब ऊपर जा रहे हैं, या दो स्टॉक्स वेयर देयर इज अ हाई डिमांड, एवरीवन वांट्स टू बाय दैट, सो दे आर काइंड ऑफ दो स्टूडेंट्स जो मतलब क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, एंड यू ऑलवेज वांट टू बेट ऑन देम. क्योंकि जो क्लास में फर्स्ट आ रहा है आप उसी पे बेट करोगे तो देयर आर हाई चांसेस कि वो नेक्स्ट ईयर भी फर्स्ट आए, राइट? सो द सेम इज विद स्टॉक्स. तो कमिंग बैक टू द आईपीओ पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन लाइक उसमें फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप जाते हो तो उसमें भी आपको एक एडवांटेज मिलता है कि जो कंपनी डीआरएचपी अपना इट कम्स विद डीआरएचपी एंड इट सबमिट्स दैट टू बीएसई. तो उसमें क्लियरली कंपनी अपना बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करती है. तो इट इज अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट फॉर समवन टू रीड एंड अंडरस्टैंड कि कंपनी करती क्या है एक्चुअल में. एंड इन दैट डॉक्यूमेंट दे ऑल्सो
टेल यू कि उनका कंपैरेटिवली रिटर्न रेशियोस कैसे हैं बाकी पीयर्स के मुकाबले, एंड व्हाट इज देयर ग्रोथ. अपार्ट फ्रॉम दैट दे आल्सो मेंशन कि मतलब हाउ इज द बिजनेस आउटलुक लुकिंग. ऑब्वियसली लाइक नो कंपनी विल टेल बैड अबाउट देम. हर कोई अपने बारे में अच्छा ही बोलता है, बट यू गेट अ सेंस कि हाँ मतलब इस कंपनी के ये पीयर ग्रुप है. अभी उसके बाद क्या करो, आपको अगर फंडामेंटली देखना है तो गो एंड चेक कि मार्जिन एक्सपेंशन किन किन कंपनीज में हो रहा है. सो मार्जिन एक्सपेंशन मेरे लिए मतलब कोई कंपनी 20% पे ग्रो करती है, 25% पे ग्रो करती है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मार्जिन एक्सपेंशन. जो कंपनी अपने मार्जिन को एक्सपेंड कर रही है ना, सो दे हैव द बेटर प्रोडक्ट मिक्स इन द पीयर ग्रुप. And if they have the better product mix, they have the moat also. That's why they are charging more to the customer. उनके peer group में बाकी companies कम you can say मतलब उनकी basically margins कम है, so that means they're selling their products cheap. Why company is able to sell their products at a dear prices? Because their products speak for themselves, or their products are in high demand. तो उन सब चीजों से you can identify कि मतलब इस कंपनी में सो आई टेल यू वन एग्जांपल. सो बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग, तो अगर आप मतलब बालाजी माइंस, एल्काइल माइंस या दीपक नाइट्राइट फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ दीपक नाइट्राइट, राइट. तो जरूरी नहीं होता कि किसी भी कंपनी में ब्रेकआउट जो आता है ना वो सिर्फ टेक्निकल ब्रेकआउट होता है. देयर आर कंपनीज व्हिच ब्रेक आउट ऑन अर्निंग्स आल्सो. क्रिसिल इज द लेटेस्ट एग्जांपल. वो क्या कंपनी क्या कर रही है पिछले लाइक 2000, आई डोंट हैव द एग्जैक्ट नंबर्स, बट 2013 से 2017 इट वाज सब 100 करोड़ कंपनी. उसके बाद उसका अर्निंग का ब्रेकआउट आया एंड इट नेवर वेंट बिलो 100 करोड़. दे केप्ट ऑन ग्रोइंग देयर रेवेन्यू अबव 100 करोड़. अभी उसके बाद उसने क्या किया, 100 टू 180 करोड़ के बीच में रेवेन्यू जनरेट किया फॉर नेक्स्ट 4 इयर्स. अभी उसका दोबारा से एक अर्निंग ब्रेकआउट आया. सो दैट अर्निंग ब्रेकआउट इज नाउ दे आर doing already 300 crore this year, and they are saying कि they'll reach 500 crore next year, and they have a target of 1000 crore in next 2 to 3 years. तो ये सब जो कंपनीज होती है ना, so they have a मतलब अगर आप फंडामेंटली देखोगे ना, so they had I mean either they were using operational leverage कि उनके पास कैपेसिटी ऑलरेडी था, नाउ दे आर रनिंग एट 100% कैपेसिटी, और द प्रोडक्ट ऑफ आई मीन द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली इन द रिसेंट टाइम. तो एक्रिजिल के केस में क्या हुआ है कि दे पार्टनर विद IKEA, which is like one of the largest kitchenware or you can say homeware company throughout the world. तो अभी उसने IKEA के साथ like tie up किया. They became contract manufacturer for sinks. तो अभी उनको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फाउंड नहीं करना पड़ेगा. लाइक इफ लेट्स से इफ एक्रिजिल हैज टू ग्रो इट्स बिजनेस मैनीफोल्ड, इट नीड टू हैव सो मेनी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. अभी उसने IKEA के साथ टाई अप किया. IKEA is giving them access to so many distribution channel. अभी उनको अपना प्रोडक्ट शोकेस करने के लिए किसी रिटेलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, राइट. सो these type of breakout happen in the history of a company like many times. तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनमें ऐसे ऐसे ब्रेकआउट्स आते हैं. लालपथ लैब है, लाइक दे कीप ऑन एडिंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ करते रहते हैं वो. सो देयर आर कंपनीज लाइक विच ग्रो ऑर्गेनिकली, विच ग्रो इनऑर्गेनिकली. द थिंग इज यू हैव टू आइडेंटिफाई कौन सी कंपनी स्केल कर सकती है. एंड बेस्ट एग्जांपल इफ आई वुड से एनीवन वांट टू लर्न अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन स्केलेबिलिटी, तो वॉच शार्क टैंक. यूएस में एक सीरीज है शार्क टैंक करके, वेयर लाइक एक्चुअल इन्वेस्टर कम्स ऑन द शो एंड दे पुट देयर मनी. Right. And the most beautiful thing about them is they decide everything, whether they want to invest their 500k or 1 million in hardly 3 to 4 minutes. Right. So if you have that capability of identifying those businesses, their scalability, how they will grow manifold, तो आपको वो सब समझना पड़ना अगर मतलब समझना है तो try to understand the business itself. तो वो एक बहुत अच्छा शो है. I suggest every youngster, everyone like who get in touch with me. तो if you want to expand your business knowledge, watch that series. वो हर साल मतलब उसका ये आता है, मतलब around 18 to 20 episodes आते हैं. So this year also it is running. So last week I think 7th episode came. So it's a live show kind of a thing. Like 2-3 months back they picked something like that. तो मतलब 2-3 महीना लेट चलता है, but it's a live show. Like 2021 के investors you will get to see. You will see like a lot of changes happening in the world also. तो जो कंपनीज अपना बिजनेस मॉडल लेके आती हैं और जो कंपनीज अपने मतलब प्रोडक्ट्स लेके आती हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड कि हाउ द वर्ल्ड इज मूविंग. तो इट्स अ वेरी गुड शो. मतलब
देखो उसको और समझो कि कैसे मतलब कंपनीज एक्सपैंड करती हैं, कैसे स्केल करती हैं, हाउ डू दे गेट टू द चीपर कॉस्ट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनना है, वो सब मतलब दे एक्सप्लेन. तो देर आर फ्यू थिंग्स विच यू कैन लर्न. तो वो सब चीजें सीखो एंड देन प्रॉब्ली यू कैन और आई कैन गेट बेटर ऑन फाइंडिंग कि नेक्स्ट मल्टीबैगर स्टॉक कौन सा होगा. बिल्कुल. या एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर. आपकी मतलब आई थिंक जो आपका आईपीओ एनालिसिस हैज बीन अ मतलब मार्केट ब्रेकर. आई थिंक आप यू शुड राइट अ बुक ऑन इट एंड आई सिंसियरली थिंक यू शुड राइट अ बुक ऑन इट. अभी तो कुछ प्लान नहीं, बट या मोस्ट प्रोबब्ली फ्यूचर आई डोंट नो, लेट्स सी. या सागर, आपसे मैं ये पूछूंगा कि ठीक है, डू यू कीप अ ट्रैक ऑन द मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ कहीं पे, जैसे अभी अगर जैसे अभी आज स्टील सेक्टर ने काफी अच्छा किया, सो डू यू गेट दैट क्यूरियोसिटी उसमें क्या हुआ, या फिर अभी कुछ टाइम पहले कॉफी वगैरह का हुआ था तो बिकॉज साउथ अमेरिका में कहीं पे वो था, या स्टील में अभी जो बीच में आया था वो चाइना की वजह से कुछ अप एंड डाउन हुए, तो डू यू कीप एन आई ऑन मैक्रो फैक्टर्स एट ऑल? मैं इतना ज्यादा नहीं देखता बिकॉज मैं टेक्निकली ही सारी चीजें देखता हूँ. ज्यादातर मैं मैक्रोज पे भी ध्यान नहीं देता, बट वो कहीं ना कहीं अगर आप मार्केट में हो तो कहीं ना कहीं ग्रोथ में बात चल रही है कहीं पे भी तो थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाता है वहां से बस. या आई हैव कनेक्ट आल्सो, सो आई टॉक विद लाइक अभी मैंने स्टील्स की बात करी थी तो वन ऑफ माय क्लाइंट हैव अ गुड बिजनेस इन स्टील, सो उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला कि डिमांड की 12 बची पड़ी है. सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप मतलब चार्ट्स देखोगे तो मैंने फिर जब चार्ट्स चेक किए उसके बाद आफ्टर दैट कॉल तो मेरे को देखा कि वेदांता एक चैनल के अंदर में उसने एग्जैक्ट वही पॉइंट पे दिया और उसके बाद नेक्स्ट डे वेंट अप 6%. लास्ट 2 दिन की बात है, मतलब पिछले दिन की अगर आप देखोगे तो उसके बाद 5-6% अप, राइट. आज थी उस टाइम पे कोई भी स्टॉक नहीं कहते क्योंकि वेदांता 10% या 12% उसके एक दिन पहले गिरा था. दैट्स वाई वो ओवरसोल्ड होने के कारण उसने बाउंस बैक दिया, राइट. और स्टील का अगर आप सीएनएक्स मेटल का अगर आप इंडाइसेस देखोगे तो ऑलरेडी सपोर्ट पे आ चुका है. अगर मैं बात करूं इंडाइसेस के हिसाब से तो आप कहाँ पे नजर रख सकते हो, मिड कैप पे आप नजर रखो, मस्त अभी आपको मूव मिलेगा. मीडिया ऑल्सो लुकिंग गुड एंड स्मॉल कैप मेटल, दीज आर द सेक्टर्स जो मेरे को पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं. 4 ही सेक्टर हैं, मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल एंड मीडिया. बाकी आप अवॉइड कर सकते हो फार्मा में. ऑलरेडी लास्ट टाइम भी मैंने बोला था आपको कि फार्मा मत ट्रैक करो. फार्मा सिप्ला पूरा गया हुआ है उधर से ही, सारी चीजें आरो फार्मा ये सब गिरे. उसके बाद भी आईटी सेक्टर बहुत मतलब अगर सेक्टर की बात करूँ ब्रेकडाउन आया उसके अंदर अपवर्ड चैनल के अंदर में, तो सीएनएक्स आईटी नॉट लुकिंग गुड. रियलिटी में थोड़ा टाइम लगेगा रिवर्सल में. एफएमसीजी नॉट लुकिंग गुड, फाइनेंस आल्सो नॉट लुकिंग गुड एट टू मी, एंड ऑटो में थोड़ा टाइम लगेगा. तो इसलिए अवॉइड लिस्ट में ये सारे सेक्टर्स. बस आई एम लुकिंग फॉर मिड कैप, स्मॉल कैप, मेटल एंड मीडिया. और मिड कैप और स्मॉल कैप में से ज्यादातर मिड कैप पे फोकस करूँ जहाँ पे जो अच्छे स्टॉक है. जैसे आज बोरोसिल रिन्यूएबल ने लोअर सर्किट मारा एंड उसके बाद बाउंस बैक करके उसने अपर सर्किट मारा. रेन्यू ऑल्सो सेम डेट, राइट. तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आज लोअर सर्किट मार के यूसी मार दिया, जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं और उनके चार्ट भी बहुत स्ट्रांग है अगर आप उनको ट्रैक करो. तो जिनके स्ट्रांग चार्ट हैं अगर वो आपको खराब मार्केट में सस्ते टाइम पे मिल रहे हैं तो जस्ट बॉट इट, क्योंकि वो बहुत जल्दी रिवर्सल देंगे, वो बहुत फास्ट मूव देंगे और शायद आप पकड़ भी नहीं पाओ. अगर कोई बोरोसिल रिन्यूएबल का चार्ट उठा के अगर दिखेगा तो माय टारगेट इज अराउंड 800-900. अभी 530 के आसपास में है. यहाँ से भी 300-400 पॉइंट आई एम एमिंग एंड आई बॉट इट अराउंड 380 के आसपास में. उसके बाद तो यूसी मारा था लास्ट 2 दिन में, एलसी मारा, आज एलसी मारा और यूसी मार दिया लकीली. आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन रेनुका. दिसंबर में आई एम एक्सपेक्टिंग big move in Renuka or sugar stocks personally because of the fundamental macros. So yeah, so I am bullish on sugar also. And अगर आज के चार्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो टेक्सटाइल ऑल्सो मेरे को अच्छा लग रहा है. आई गेस समथिंग न्यूज विल कम एंड 1 या 2 वीक के अंदर में जिस हिसाब से चार्ट उनके बिल्डअप हो रहे हैं एंड वॉल्यूम ऑल्सो बिल्डअप इन टेक्सटाइल. सो माइट बी पॉसिबल टेक्सटाइल में आप मूव देख सकते हो इन अपकमिंग डेज. अच्छा, अभी रिसेंटली मतलब ये कहा जा रहा है कि देयर हैज बीन अ मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट इन टेलीकॉम इंडस्ट्री, पार्टली बिकॉज एयरटेल ने प्राइसेस अपने अभी बढ़ा दी, टैरिफ प्राइस किया है प्रीपेड एंड उसमें.
उसके टेलीकॉम सेक्टर पे व्हाट आर योर व्यूज अभी मैं पर्सनली टेलीकॉम बची है तो हाँ, बट टेलीकॉम में ज्यादा तो ट्राई क्यों नहीं करता कि भारती ऑल्सो बहुत मतलब टाइम पास बहुत करता है और ऑल्सो फंडा फ्यूचर में है, तो मैं पर्सनली इसमें चाहूंगा अभी तो स्प्रेड बना के चाहूंगा कि भारती इज लाइक टू वॉलेटाइल। आप अभी ट्रेड कर रहे हो, अगले ही पल में पता नहीं क्या हो उसको, राइट? इफ यू आर डूइंग फ्यूचर, सो आई एम नॉट ट्रेडिंग रिलायंस, भारती एयरटेल एज ऑफ नाउ, मतलब तो आई एम नॉट ट्रैकिंग टेलीकॉम पर्सनली सेक्टर। ओके ओके दविंदर सर, आई वुड आपसे भी मैं यही पूछूंगा कि टेलीकॉम सेक्टर पे इफ यू हैव एनी व्यूज फ्रॉम ईदर साइड, टेक्निकल और फंडामेंटल। Technically, yeah, I mean Bharti Airtel has multi-month breakout, so high chances it will sustain. But again, like they are large cap, so my forte is not trading in large cap. I generally trade in small cap and mid cap, high growth companies. So yeah, I mean for a fundamental investor or for a guy like who invests in large cap stocks, Bharti looks good. तो उसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं या एंड इसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन, जो कल का एक फॉल आया था, काफी लोग इसको एट्रीब्यूट इसको कर रहे हैं कि रिलायंस का जो फॉल था वही निफ्टी को नीचे लेके गया, एंड उसका रीजन लोग एट्रीब्यूट करते हैं कि अरामको से डील हुई जो कि ऐसे पोर्ट्रे की जा रही है कि नेगेटिव है। सो उस पे क्या व्यू है आपका? अगेन लाइक सी द थिंग इज, ये सब न्यूज जो होती है ना, ये सब बाद में आती है। लाइक एवरीवन कैन एनालाइज इन द हाइंडसाइट कि क्या हुआ था, राइट? बट इट डजंट गिव यू मनी। अगर आपका मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है एंड यू आर रनिंग एट 100% एलोकेशन, तो आपका तो नुकसान ही है ना। आपको न्यूज से क्या फायदा होगा? लाइक इवन इफ आई नो कि मार्केट किस वजह से गिरा है, व्हाट इज द बेनिफिट आई विल गेट आउट ऑफ इट? I'll get no benefit. The thing is, जो भी स्मार्ट मनी पोजीशन होता है ना, so the market moves according to them. और बाद में जो न्यूज होती है, लाइक वी पीपल अंडरस्टैंड कि हाँ ये इस न्यूज की वजह से गिरा है, उस न्यूज की वजह से गिरा है, बट द पोजीशंस आर ऑलरेडी मेड. आई एम continuing sharing my analysis on the smart money data on my Twitter handle, and 22nd October say they have started building short trades. So 22nd of October से market is in distribution mode. तो अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं बट दे आर फेलिंग। मतलब वो ब्रेकआउट की जो मूव है इट्स हार्डली सस्टेनिंग फॉर 2 or 3 days, एंड जनरली लाइक if a good breakout happens, जो breakout का magnitude होता है it is somewhere between 22 to 25%, which has narrowed to 6 or 7% now, and that is also getting very tough. तो ये सब जब चीजें होती हैं तो मतलब एक जिसको मतलब कुछ भी समझ में नहीं आता, for them also if your breakouts are not sustaining and most of them are failing, तो market is already in the distribution mode. ठीक है, तो अगर कल की फॉल आई है या परसों की फॉल आई है, वो कल या परसों के बेसिस पे नहीं आई। इट केम बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड मोर मनी देन अस, दे हैड बिल्ड देयर पोजीशन इन एडवांस। तो वो 3 हफ्ते से पोजीशन बिल्ड करके बैठे थे, नाउ दे आर ट्रैपिंग ऑल द रिटेल्स एंड रिटेल इज सेलिंग। तो वो ऐसा ही चलता रहता है। इट्स अ गेम ऑफ मनी मूविंग फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड। तो वो ज्यादातर जो मनी मूव होती है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम वीक हैंड्स टू स्ट्रॉन्ग हैंड्स इन द लॉन्ग रन। तो वही अभी हो रहा है। लाइक दे बिल्ट देयर शॉर्ट पोजीशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड, जब मार्केट था 18,400 18,350 के आसपास, राइट? तो अभी हम लोग क्या सोच रहे हैं कि मार्केट 300 पॉइंट गिर गया या मार्केट 400 पॉइंट गिर गया, वी शुड बाय। तो बहुत सारे लोग क्या है 17,800 के आसपास ट्रैप्ड थे। तो 17,800 वाज अ की लेवल, और वही 50 डीए में भी उसी के आसपास था, राइट? तो जैसे 50 डीए में ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ सॉरी, देन सेलिंग इंटेंसिफाइड। तो अभी क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो पहले से स्टक थे, दे हैड टू सेल देयर पोजीशंस टू कवर जितने भी उनके एसेट्स थे या जो भी थे। सो दैट्स व्हाई वी सॉ शार्प सेलिंग इन लास्ट 2 days। तो अभी क्या है कि अगेन लाइक मार्केट हैज इट्स ऑन स्ट्रक्चर, तो उसमें एक्सोशन एक्सटेंशन भी होगा, ऊपर में भी होगा, नीचे में भी होगा। कभी भी मार्केट लाइक इट्स नॉट अ यूनि डायरेक्शनल इंस्ट्रूमेंट। एक ही डायरेक्शन में कभी ऊपर नहीं जाएगा, एक ही डायरेक्शन में कभी नीचे नहीं जाएगा, राइट? तो
वो वैसे ही चलता है, लाइक कंसिडर इट एज अ कार। अगर आपने उसमें पेट्रोल डाला है तो यू कैन नॉट रन इट फॉर इनफाइनाइट टाइम, राइट? आपको बीच में ब्रेक लगाना पड़ेगा, रिफिल करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर जर्नी। तो आप रिवर्स गियर में जा रहे हो या फॉरवर्ड गियर में जा रहे हो, इट डजेंट मैटर। अगर फॉल आ रही है तो वो भी स्टॉप होगी, ऊपर जा रही है तो वो भी स्टॉप होगा। सो द सेम इज हैपनिंग विद द मार्केट आफ्टर 4 or 5 days of intensified selling. In fact, even if you look at Bank Nifty, right? तो Bank Nifty में 11 out of 12 days are red days. And last time this happened was in 2015. तो 2015 के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब बैंक निफ्टी 11 दिन गिरा हो कंटिन्यूसली आउट ऑफ दोस 12 डेज। तो अभी जब 11 दिन गिरा है तो इट्स काइंड ऑफ एग्जॉशन। अभी सेलर्स और सेल नहीं कर सकते, दे डोंट हैव दोस पोजीशंस टू सेल इट एट अ लोअर लेवल। तो मार्केट को बढ़ना ही है, बट अभी कितना बढ़ेगा, वो लोग कैसे पोजीशन बिल्ड करेंगे, ये अपने को क्लियर होगा नेक्स्ट 3 to 4 डेज में। हाँ, तो ये सब मतलब एयरटेल की वजह से गिरा या रिलायंस की वजह से गिरा, ये सब न्यूज है, विल ऑलवेज बी गुड इन द हाइंडसाइट, बट फ्यूचर में क्या होगा, दैट विल ऑलवेज बी बेस्ड ऑन देयर पोजीशंस। राइट, एब्सोल्युटली। इसी से सर एक और मतलब काइंड ऑफ रिलेटेड चीज जो अभी बहुत टॉक्ड अबाउट है, दैट इज पेटीएम। या तो उसमें गिवन आपका जेम ऑफ अ मॉडल, उसमें व्हाट डू यू सी फॉर पेटीएम फ्रॉम नीदर पॉइंट? पेटीएम most likely it will be either fall into late bloomer or it will be a case of waterfall, क्योंकि जितने भी बड़े साइज के आईपीओ होते हैं ना, दे नीड अ लॉट ऑफ मनी टू गो अप। अभी इसका साइज इज टू बिग, right? So that is one thing, and the another thing is there are very few fintech listed as of now, right? Policy Bazaar एक list हुआ है, then Paytm got listed. So these are kind of companies जिसका मतलब अगर मुझे बाय करना पड़ेगा, और if any fundamental investor is buying, he doesn't have so much of information about that company, right? So everyone is buying on the anticipation कि हो सकता है फ्यूचर अच्छा हो सकता है फ्यूचर ना अच्छा हो। So if earnings are sustained, मतलब I couldn't understand their business model, जो भी उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोला around 1 hour, but what could I understand was like the lending business is growing at 100%, and I think they are some business, another business he mentioned which saw growth of some 64% this last quarter. So if this kind of growth is sustained, then obviously like we can see some momentum coming back into the Paytm. But again, I mean as a rule, जो भी मैंने IPO strategies में भी बताया था कि we should not chase any IPO stock unless and until it breaks its first 2 week of high. तो जब तक वो अपना 2200 लेवल्स ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता, इट्स अ नो फॉर मी। ओके, या एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। सागर, आपकी क्या एनालिसिस कहती है जो अभी ये वी शेप जा रहा है, इज इट राइट टू बाय या अभी और वेट करना है, या व्हाट वुड बी योर थॉट्स ऑन इट? पर्सनली मैंने आज ही अपने ट्विटर हैंडल पे 2 चार्ट शेयर किए थे, बैंक निफ्टी का एंड निफ्टी का। सो बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास में है, सीआईपी चेंज इन पोलरिटी जोन के आसपास में है, 36,000 ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक नहीं होता तो अपन 39,000 40,000 भी देख सकते हैं अपकमिंग वीक्स। एंड सेम फॉर द निफ्टी। यस, या आई एग्री विद यू सागर। या आई शेयर द चार्ट विथ यू आल्सो, राइट? आई गेस आपने देखा होगा। एंड निफ्टी के अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो निफ्टी का सपोर्ट 17,165 मेन सपोर्ट है, और वहीं के आसपास अपन ने टच करके ऑलमोस्ट वहीं से पास से अपन ने टच करके अपन मूव करें, तो आई एम एक्सपेक्टिंग वापस 18,000 अपन आने वाले हैं अपकमिंग डेज। तो आई डोंट सी की डाउन साइड दिखे। ऑल्सो आई एम चेकिंग द सेक्टर्स एनालिसिस, आज पूरा मैंने किया था, तो सारे सेक्टर्स अपने सपोर्ट के नियर ही हैं, जो उनके बेस्ट सपोर्ट है उनके पास में है। तो माइट भी चांसेस यहाँ से रिवर्सल आप देखने को मिल सकता है। दैट्स व्हाई मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पे फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा करेक्ट हुए हैं पर्सनली। तो बहुत सही मौका है वहाँ पे, आप अगर सही स्टॉक आप बाय करते हो तो वहाँ पे आपको पैसा मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि सारे स्टॉक्स ही भागेंगे, क्योंकि वी आर नॉट ऑन दैट मार्केट कि अब सब कुछ ही भागेगा। अब यहाँ पे थोड़े कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ही भागेंगे जो शायद चले ना हो, राइट? तो आई एम फोकसिंग ऑन टेक्सटाइल, क्योंकि टेक्सटाइल में ज्यादा बड़ा मूव नहीं आया है, और आज ही बहुत सारे ब्रेकआउट्स हुए हैं, बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हुए हैं, वीकली और मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स। सो आई एम बुलिश ऑन टेक्सटाइल। Awesome. So if you brilliant folks are up for it, थोड़े से ऑडियंस की बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई है, कुछ क्वेश्चंस लेने सर? Sure. Okay. So I'll add
पलश हमारे साथ हैं, लादिम, गौतम हमारे साथ हैं. Guys, if you have any questions to ask, you can please send a request and we'll try to answer a few, as many as we can take. In the meanwhile, I'm just inviting them. You can always go and check out their portfolios on Trinker. If you just go to our प्रोफाइल पेज एंड वहाँ पे एक ट्वीट पिंड है जिसमें कि आपको दविंदर सर के, सागर के एंड अर्पित सर प्राइस वॉल्यूम ट्रेडर जो हैं उनके भी आपको पोर्टफोलियोज के लिंक्स मिलेंगे विच आर कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, ओपन कि उन्होंने कितने स्टॉक्स इस समय किस पे लिए हुए हैं, ट्रिंकर पे लिए हुए हैं, कितने प्राइस पे लिए थे, कितने प्रॉफिट्स उनके रिटर्न्स आए हैं. It's all free and free to see and you can invest in those portfolios for free in just one click. जो भी stocks उनके portfolio में हैं, they'll come to your own Zerodha, Angels, जो भी आपका brokerage account है उसमें just एक click में आ जाएंगे वो. So that's the beauty of it. And what's even more beautiful is कि अगर आप इस week दविंदर सर के में, सागर के में या अर्पित सर के में किसी के में भी stock में अगर इन्वेस्ट करते हो तो यू गेट इमीडिएट कैशबैक विद इन 24 आवर्स. यू गेट अ कैशबैक ऑफ 100 रुपीज. सो ये आपके रिटर्न्स मतलब जो बनने हैं उनको फॉलो करके वो तो बनने ही है, उसके अलावा भी आपको इमीडिएट रिटर्न भी एक बन जाता है. एंड ऑफ कोर्स वंस यू इन्वेस्ट इन देयर पोर्टफोलियोज यू गेट इमीडिएट नोटिफिकेशंस रिगार्डिंग कि उनको जब भी कोई ट्रेड लेंगे, जैसे कि अगर उनके पोर्टफोलियो में दविंदर सर अगर कोई पोर्टफोलियो बाय या सेल करते हैं कोई और स्टॉक, तो आपको नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये आपने इन्वेस्ट किया था तब खरीदा था, अब उन्होंने सेल कर दिया तो यू कैन ऑल्सो सेल इट ऑफ. इट्स द टाइम टू सेल. और अगर उन्होंने कुछ नया खरीदा है तो फिर यू गेट अ नोटिफिकेशन कि ओके यू शुड ऑल्सो ऐड दिस स्टॉक अकॉर्डिंग टू हिज फिलोसफीज एंड ट्रेडिंग स्टाइल. सो या, सो गौतम हमारे साथ जुड़ गए हैं. गौतम, आर यू देयर विद अस? गौतम, यू आर ऑन म्यूट. ओके, चिराग बता दो. अर्पित सर ऑल्सो आ गए हैं तो आप उनको स्पीकर बना सकते हैं. I've been actually trying to do that. Yeah, but कुछ yeah, so उनको मैं ट्राई कर रहा हूँ. I tried to add him just now, but apparently कुछ तो I think technical issue है जिस वजह से कि I think yeah, now he's Arpit sir, are you there with us now? Yeah, I'm there. All right, awesome. So unfortunately आप हम लोगों ने थोड़ा सा पार्ट मिस किया, but we'll get back to you and I have a lot of questions to ask you as well. Sure. तो हम लोग थोड़े से questions लेते हैं and then I'll come back to you and ask a few questions from you that I've jotted down. All right, Chirag आप हमारे साथ हो? Yeah, I'm there. Yeah, I just want to understand from Davinder if it's possible that he has been very clear in terms of the technicals and how it needs to be mapped to the fundamentals. So I just wanted to understand because there are a whole lot of people whom I have been following towards the market, and I'm not a trader but a semi-investor type. I mean, in the sense, they're not a very long term, but in mid-term. So I was just going through this. Fibonacci series as well as certain Elliott waves. So, what would be suggestion to people like us who are just going through it or learning about it from the Davinder? I didn't get your question completely. So, what I was trying to make out here is that when you are going into the technicals very smooth, talking about your let's say trend lines as well as averages and other things being mapped, and then volume and other things. yeah. So how about an importance of Fibonacci as well as the Elliott when you go through your technicals? Okay, so Do you go through them? yeah. So let me tell you, like I have not gone through Elliott wave analysis per se, but I know like how it forms. So there are basically yeah. So I would say like there are 100 ways to catch a fish, right? So Elliott can be one way, Fibonacci can be one way. So I don't go apart from price and volume. So for me like the raw data is more important and the most important thing. तो अगर आपको प्राइस एंड वॉल्यूम अंडरस्टैंड करना आता है देन ऑल दिस थिंग्स विल नॉट मैटर. तो ये सारी जो मतलब obviously like Elliott wave is kind of a scientifically pattern which keep on repeating in stock charts. तो उसी के सेम पर्पस पे हम लोग क्या करते हैं कि my type of analysis is based on the staging. तो हर एक स्टॉक का एक मैच्योरिटी साइकिल होता है. लाइक एवरी स्टॉक गोज फ्रॉम
जो उसका फर्स्ट फेज होता है, लाइक विच वी कॉल इट एज स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, राइट? सो जनरली क्या होता है कि जो भी स्टॉक्स होते हैं ना, दे रिमेन अंडर, यू कैन से वॉच फेज फॉर सम टाइम, राइट, विच वी कॉल इट एज अ स्टेज 1. उसके बाद क्या होती है, उसमें अकोमुलेशन स्टार्ट होती है, लाइक एवरी म्यूचुअल फंड्स और एवरी बिग मनी इज एंटरिंग इनटू दैट. तो जब वो स्टेज 2 स्टार्ट्स होती है, तो उसी में हम लोग बोलते हैं कि एलियट के टर्म में लाइक वेव 1 स्टार्ट हुआ. ओके, सो उसी में फिर बेसिस बनेंगे. कंसिडर इट इन दिस वे. लेट्स से समवन इज क्लाइंबिंग अ माउंटेन. तो इफ ही वांट्स टू क्लाइंब अ माउंटेन ऑफ लेट्स से 5000 फीट, तो वो एक ही दिन में 5000 फीट ट्रेवल नहीं करेगा, राइट? सो he will travel like let's say 600 feet one day, then he will take rest for let's say 5 hours, 6 hours, then he will again go up. तो वैसा ही एलियट के टर्म में अगर आप बोलोगे, तो जो उसने 500 to 600 फीट फर्स्ट कवर किया, दैट इज अ वेव 1. उसके बाद जो उसने स्टॉप लिया, दैट इज कॉल्ड एज ए, जो हम मार्क करते हैं, राइट? उसके बाद व्हेन ही स्टार्ट्स अगेन, देन इट्स कॉल्ड एज वेव 2. उसके बाद देन ही टेक स्टॉप, दैट इज कॉल्ड एज बी. तो मैं जो उसको कॉल करता हूँ, आई कॉल देम एज बेसिस, BASES. तो मेरे लिए क्या है कि लाइक एवरी स्टॉक इज मूविंग अप, देन इट इज फॉर्मिंग अ बेस. आफ्टर दैट इट अगेन ब्रेक आउट फ्रॉम दैट बेस, देन टेक रेस्ट एंड फॉर्म अनदर बेस. तो अगर आप एलियट के टर्म में समझना चाहो या नॉर्मल लेमैन के टर्म में समझना चाहो, एवरीथिंग फॉल्स इनटू द सेम प्लेस इफ यू अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन. एंड फिबोनाची इफ आई टॉक, तो like a lot of my fellow friends and fellow traders, they follow Fibonacci. I don't follow it rigorously. I follow it on indexes sometime, just to find कि कहाँ तक see. आपको दो चीज, like there are two type of trading which you can follow. One is कि आप अपने टारगेट से फिक्स कर लो कि मुझे फिबोनाची से आई आइडेंटिफाइड कि लेट्स से आई विल बी बुकिंग एट अ फर्स्ट एक्सटेंशन और द सेकंड एक्सटेंशन. बट अभी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक हैज मोर रन अप रिमेनिंग. तो आप पहले ही अपने स्टॉक में, इफ यू फाइंड अ विनर, व्हाई डोंट यू राइड इट टू द कंप्लीट पोटेंशियल? व्हाई विल यू रिस्ट्रिक्ट इट्स अपसाइड योरसेल्फ? Right, so use Fibonacci to identify support, but never use Fibonacci to identify resistance. आप ये मत आइडेंटिफाई करो कि इट विल टेक अ स्टॉप हियर. लेट इट रन वॉट एवर द वे इट वांट्स टू रन. उसको टाइम दो, इट विल ग्रो. इफ यू फाइंड गुड स्टॉक्स, आई विल टेल यू, लाइक आई हैव ग्रोन माय पोर्टफोलियो 278% in last 17 months after this COVID crash happened. And out of those 278%, 3 of my stocks had more than 125% returns. ठीक है, तो अगर आप ऐसे स्टॉक्स फाइंड करते हो एंड यू हैव अ गुड एलोकेशन, देन यू विल सी दैट रिजल्ट इन योर पोर्टफोलियो. तो आपके 3 या 4 स्टॉक्स व्हेन दे बिकम 5x, 6x, 7x, देन यू विल सी कि हाँ, मतलब आपका पोर्टफोलियो हैज ग्रोन मैनी फोल्ड, एंड इफ यू हैव एलोकेटेड प्रॉपर्ली इन देम. तो अगर मैं वही फिबोनाची ड्रॉ कर करके, इफ आई कीप ऑन रिस्ट्रिक्टिंग माय अपसाइड, कीप ऑन बुकिंग दैट, राइट? My point was this only, because what is happening is, it's not that the returns have not been coming, but because of this 0.618 retracements or let's say resistance and all, most of the time, let's say I would have got a 30% from the gain from the stock, right, from the retracement when it is happening. But actually, the moment I leave it, it is 30% in next 3-4 days. Yeah, so वही होता है, like see, leaders have जो मतलब फर्स्ट टाइम ब्लूम करते हैं ना एनी बियर मार्केट से, सो दे आर द बिगेस्ट गेनर. ऑलवेज रिमेंबर दैट. इफ मार्केट हैज क्रैश्ड इन मार्च, identify all the stocks which have moved up in April. Okay, so those will be the stocks which will be the biggest gainer for next 6 or 7 months. If you take an example, which was the first stock which broke out significantly? Laurus Labs, right? So Laurus Lab was the first stock. Aarti Drugs was the second stock. So Newland Lab was third stock. Balaji Mine was fourth stock. So these are the stocks which are coming from a same group, telling you कि they are the leader for the next bull run. तो अगर आप उन्हीं में इन्वेस्ट करते हो, then there are high chances you will make big returns. So the same thing happens after 4 months, 6 months. So they will start forming their base because they have run up like 2x, 3x from their initial move, right? तो अभी क्या होगा, momentum will shift to some other sector. तो वो जो नेक्स्ट सेक्टर होगा, ट्राई टू आइडेंटिफाई लीडर्स फ्रॉम दैट सेक्टर. सो वंस यू आइडेंटिफाई लीडर्स, मैं ये नहीं बोल रहा कि मार्केट कैप के बेसिस पे लीडर आइडेंटिफाई करो. आपको लीडर आइडेंटिफाई करना है कि कौन से स्टॉक में कितनी अच्छी मूव आ रही है, लाइक हाउ प्राइस एंड वॉल्यूम्स आर मैपिंग विद दैट. तो अगर आप वो आइडेंटिफाई करते हो,
then obviously you're finding next leaders. तो वैसे next leaders find करते रहो. You can rotate your money if you want. If you want to stick with the first set of leaders, they'll also give you good returns. So don't restrict your returns based on Fibonacci. Just keep it running. Keep on trailing basically. अगर आपको लग रहा है कि मतलब 50 DA में break नहीं कर रहे, then you keep on holding those stocks. They are kind of stocks which has potential to give you 7x, 8x. Don't book them at 30%, 35%. Yeah, and but this will happen after you can say the bear market is over. अभी अगर अभी मुझे कोई बोलेगा कि tell me next 6x or 7x, I'll say there's highly likely there is zero possibility. There's a phase of market also, no? So depending on the phase of the market, the stock will move. Right? Yes, and exactly. my only last 5 seconds on the subject, what you said on the price and volume, there is one data which I generally try to follow, which is your NSE delivery data, wherein you can map your number of shares traded today versus to delivery versus the number of transaction which has happened, which I think helps to get, let's say there are some 7 crore shares being traded, and the other day also 6 to 7 crores are traded, but the number of transaction, which is the number of trades which would happen, are half, which means some big guy would have taken up from that. So I think that becomes a base, and that's how I try to do it. So is it a right way to do it? Okay, I'll tell you one thing. So I also used to follow this data. So last time, like IRCTC, I'm telling you 2019. Okay, so when IRCTC broken out from its base around 900, it went to 1550, 1600. So in that particular period, from 900 to 1500, the delivery percentage was somewhere between 27-28% consistently. But after 1600, when it went to 1800, 1850, the delivery percentage dropped to 3% or 4%. तो जब डिलीवरी तो जब डिलीवरी परसेंटेज ड्रॉप होता है तो जनरली क्या होता है कि रिटेल इज नाउ एंटरिंग एट द हायर लेवल एंड स्मार्ट मनी इज स्मार्टली एग्जिटिंग दैट. तो जनरली स्टॉक्स मेक टॉप कि जब उनका मतलब हाई डिलीवरी परसेंटेज टू लो डिलीवरी परसेंटेज होना शुरू करता है. बट इट्स नॉट समथिंग विच आई रिलाई अपॉन. इट्स नॉट पार्ट ऑफ माई ट्रेडिंग प्लान. दिस इज माई जनरल ऑब्जर्वेशन, सो आई एम शेयरिंग विद यू. Sure. Thank you. Sure. Yeah. Brilliant. Thank you so much, sir. One more thing I would like to getting back to our original topic before we take and if time permits we'll again invite some more questions later. एक बहुत ही common जो scenario एक conversation how it goes for fundamentals versus technicals is क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हो, क्या आप पसंद करते हो, एंड यू जस्ट गो एंड बाय देम. सो दैट इज काइंड ऑफ फंडामेंटल. बट देन फिर उसमें एक ऐड जाता है कि आई नरेट अ स्टोरी एंड देन आई वांट ऑल थ्री ऑफ यू टू प्लीज पुट योर व्यूज ऑन इट. तो नरेशन शुरू यहाँ से होता है कि जो आप यूज करते हो उसको आप उसमें इन्वेस्ट करो. उसमें फिर इसका जवाब ये आता है कि बट देन ऐसे हर किसी में मत कर दो, जस्ट सी कि उनका फिर आप थोड़ा सा डिटेल्स देखो कि उनके बिजनेस का कितना बड़ा पार्ट है वो प्रोडक्ट जो आपको पसंद है, वो एक्चुअली प्रॉफिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. थोड़ा सा डीप में जाओ. तो अगेन द आर्ग्यूमेंट्स गोज कि मैं उतने जितना डिटेल में वो जा रहे हैं उतना डिटेल में तो मैं पता कर ही नहीं सकता, बिकॉज आई डोंट हैव वो सारी इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि क्या है. तो इसके लिए लेकिन फिर बोलते हैं कि इसीलिए प्राइस टेल्स यू एवरीथिंग, कि प्राइस में सब कुछ लिखा है कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, गो फॉर इट. एंड देन इसलिए फिर टेक्निकल्स को देखो. उस पे ये आता है कि जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे टेकिंग फ्रॉम बुफे टू झुंझुनवाला टू एवरीबडी, दे आर वैल्यू इन्वेस्टर्स जो कि इंडियन फंडामेंटल्स फॉलो करते हैं. तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ नरेशन जो पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स और ये सब चलते रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स उसका जवाब ये है कि आई एम नॉट झुंझुनवाला, आई कांट नो एवरीथिंग. ही कैन एक्चुअली बाय आउट द कंपनी अगर कुछ गलत जाता है, आई कांट डू दैट. तो इस नरेशन पे इफ यू कुड हैव अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. अर्पित सर, आप हमारे साथ कुछ डिफिकल्टी से जोड़ नहीं पाए थे. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू. हाँ, फॉर मी लाइक एक्चुअली व्हेन द ब्रेकआउट कम्स, तो मेरे हिसाब से कि वो न्यूज़ उसमें फैक्टर नहीं रहता है. और जैसे कि ये है कि हम क्या यूज़ करते हैं उसको सबसे पहले खरीदें, तो देन लाइक आई थिंक वी यूज़ एन नंबर ऑफ थिंग्स. तो लाइक सबको तो नहीं खरीद सकते एंड हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं रहता है. एंड तीसरा पॉइंट, लाइक मेरे को फंडामेंटल का इतना नॉलेज भी नहीं है, तो सो फॉर दिस आई लाइक प्रेफर टेक्निकल ओनली. राइट. ओके. Davinder sir.
Yeah. So yeah. So again, like it boils everything boils down to your knowledge about that particular topic. तो मैं वही बोल रहा हूँ कि कुछ भी सीखो, just try to become best at it. It doesn't matter आप टेक्निकल एनालिस्ट हो या फंडामेंटल एनालिस्ट हो. Why we name Warren Buffett, why we name R.K. Damani, why we name Rakesh Jhunjhunwala, right? So we name them because they are best at their business. They know कि उनको क्यों बाय कर रहे हैं, वो मतलब किस पर्पस से बाय कर रहे हैं, right? And there is one more, I wouldn't say unknown name, but there is a one very good guy. उनका नाम है Unseen Value. I think most of you might have known him, Sajal sir, right? So I follow him also. If you read his tweets, if you watch his sessions on YouTube, so his knowledge about pharma sector or chemical sector is at extreme level. Okay, so he's like 10,000 times better than me in term of business understanding of pharma, chemical, like that. So he is generating extraordinary returns. He bought like Loras at 70, 78 levels. Why he is generating extraordinary returns just based on fundamental analysis, right? Because he is best at his business. He knows why he's buying that particular company and why does he want to put so much money or so much stakes into those businesses. So try to become best at it. जो भी आप बनो, मतलब it doesn't matter. At the end of the day we all are having a same purpose कि हमको wealthy बनना है, right? So that's our only purpose. तो उसका path अलग हो सकता है, direction अलग हो सकती है, उसकी journey अलग हो सकती है, but your destination is same. At the end of the day or at the end of the month, at the end of the year, you have to generate returns. You have to grow your portfolio. You have to beat the inflation index. You have to beat the benchmark index. You have to beat many of the mutual funds because you're putting so much effort yourself. You're putting some part of your time from your job or from your family into the stock market. So make use of that time and try to beat all these indexes. So once you try to reach that level, then there is nothing but improvement. So you have already reached a level where you are already beating inflation index. You are already beating Nifty index or small cap index. तो उसके बाद आपको improve करना है. That's it. So try to become best at it. Whatever you do, it doesn't matter. Right. Absolutely. Sagar, can we have your thoughts on it? I agree with Arpit sir and Davinder sir. उन्होंने सब कुछ cover already कर लिया दाविंदर सर ने बहुत अच्छे से, and Arpit sir also. So मेरे पास ऐसा कुछ बचा नहीं कि जो मैं cover कर पाऊँ सका. Personally, I'm not like वही चीज आपको पता है कि I'm just following the technical. I don't know about the fundamentals. और also आप बहुत सारी चीजें ऐसी देखती हो आपके आसपास. जैसे मैं अभी कुछ days पहले मैं नीरव सर से मिला था. नीरव सर also on ट्विटर स्पेस एज ऑफ नाउ, शायद सुन रहे होंगे. तो उन्होंने मेरे को एक टूथपेस्ट के बारे में एग्जांपल दिया था. वी आर टॉकिंग इन मुंबई, कहीं पे हम मिले थे, तो वहाँ पे उन्होंने टूथपेस्ट के अंदर में एक पिगमेंट होता है, उसके बारे में वी आर टॉकिंग. एंड उन्होंने बोला कि वो सिर्फ एक ही कंपनी बनाती थी, को पता है वो कौन बनाता है. एंड देन वी आर टॉकिंग कि हाँ अच्छा ये चीज बहुत सारी चीजों में यूज होता है, बबल गम के अंदर में भी यूज होता है, बहुत सारी चीजें. एंड देन वी विल चेक द फंडामेंटल चार्ट, तो स्टॉक बहुत अच्छा था, राइट. तो नीरव सर इज अ पर्सन जो बहुत छोटी छोटी चीजें बहुत मतलब नोटिस करते हैं. बट पर्सनली आई एम नॉट नोटिस एनीथिंग. बस मेरे स्क्रीन पर जो आ जाता है बस आई एम नोटिसिंग वो चीज. नीरव सर इज लाइक कि उन्होंने एक एग्जांपल दिया था ऑन बीच कि वहां पे देखो पता है कि कौन सी ज्यादा वेस्ट जो कचरा होता है उनको कौन उठाता है मैनेजमेंट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. तो उन्होंने मेरे को एक एग्जांपल दिया और देन वी नो कि यार अच्छा वो कंपनी है, वो ओनली वन कंपनी है जो बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल है और मार्केट लीडर है. एंड देन आई नो कि वो कंपनी वो करती है. तो उसके लिए आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आपके सामने चीजें हैं पर उसके अंदर में से क्या पार्ट आपको लेना है, राइट. जैसे वो टूथपेस्ट वाली बात में से वो एक रॉ पिगमेंट था, मेरे को उसका नाम भी याद नहीं आई गेस, बट वो पिगमेंट हर टूथपेस्ट में यूज होता है, राइट. वो भले कॉलगेट बनाए या बबूल बनाए या पेप्सोडेंट बनाए या वो च्युइंगम बनाओगे तो उसके अंदर भी जो एक टेस्ट के लिए आता है वो चीज, तो वो चीज मेरे को याद है. तो वो क्यों याद थी, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया. अब मैं इतना नोटिस नहीं कर सकता ना कि रॉ मटेरियल के अंदर मैं चाहूंगा ये अच्छा यही पार्ट है जो सारी चीजों में यूज होगा, राइट. एंड देन आई चेक द चार्ट, इट्स टेक टू मच टाइम आल्सो, राइट. या एब्सोल्युटली. ब्रिलियंट एनालॉजी. चंद्रा, मैं आपसे भी आपकी ओपिनियन लेना चाहूंगा.
हाँ, थैंक यू गाइस, आप लोगों की काफी बातें सुनी। एंड फंडामेंटल वर्सेस टेक्निकल जो आज का टॉपिक है, ये डिलेमा मेरे लाइफ में भी आया था जब मैं मार्केट में पहली बार आया था। तो लोग बहुत जगह से सीखते हैं। मेरे को एक चीज बहुत स्ट्रक कर गई दिमाग में। एक बार मैं गीता पढ़ रहा था, तो उसमें 12th चैप्टर में अर्जुना जो है भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि बताइए मैं किस टाइप की पूजा करूं, मतलब भगवान की पूजा मैं किस टाइप की करूं, किसी आकार का करूं या निराकार का करूं, दैट इज कॉल्ड सगुण या निर्गुण। तो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली आंसर दिया उसको। एंड गीता की सबसे खास बात ये है कि जो कोई भी उसको पढ़ता है वो एक अलग पर्सपेक्टिव से समझता है। तो मैंने इसको एक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छे से समझा। हमारे मार्केट में भी दो टाइप है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल जहां पर आप कंपनी की भांति भांति को निहारते हैं, जैसे भगवान की आप कोई पूजा करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं तो उनके सूंड की, हर मोदक की, हर चीज की पूजा मतलब उसको पकड़ के समझते देखते हैं। कंपनी में भी ऐसा है, आप उसके प्रोडक्ट के सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन, मैनेजमेंट, हर किसी चीज को भांति भांति निहारते हैं और समझते हैं कि कैसे इस कंपनी को समझा जाए। दूसरी तरफ आती है टेक्निकल चीजें, जहां पर आप सिर्फ एक चीज देखते हो जो कि प्राइस, जो कि हर दिन बदलता है। अगर आप देखो तो प्राइस तो कुछ दिखाता नहीं है, बट इट्स अ सम टोटल ऑफ ऑल एक्सप्रेशन। मतलब कहने को चार्ट कुछ नहीं, कोई कंपनी के बारे में कुछ नहीं दिखाता, बट एज अ होल इट टेल्स यू एवरी पिक्चर, राइट। तो वो आ जाती है निर्गुण वाली बात। तो मेरी समझ में ये है कि आप किस चीज को फॉलो करो। ये क्वेश्चन हम आज पिछले 1.5 घंटे से अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि आप पहले अपने आप को समझिए कि आप अपने जीवन में किस तरह से चीजों को लेते हो, ऑब्जर्व करते हो या उसको एक्ट करते हो। एक बार आप उस चीज को समझ जाएंगे ना, तो आप उसी चीज से मार्केट को अप्रोच कीजिए। अब ये बहुत समझना जरूरी है कि आप कैसे अपने जीवन में चीजों को डील करते हैं। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है, उतना इम्पोर्टेंट भी ये क्वेश्चन है कि आप मार्केट में जब आते हो तो किस टाइप का मेंटर, किस टाइप का ट्रेडर, जो इतने सारे ट्विटर पे लोग हैं उनको, किनको आप फॉलो करो, किन से समझो। तो ये क्वेश्चन समझना ही बहुत जरूरी है। और इसमें मैं थोड़ा सा प्लग इन करूंगा, इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए हमने ट्रिंकर बनाया है, जहां पर हम अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, जितने भी अच्छे ट्रेडर्स उनको लाते हैं, उनकी सब चीज, ट्रेडिंग स्किल्स, उनके क्या रिटर्न्स है, उन्होंने क्या स्टॉक होल्ड कर रखा है, और डेली उनको पॉडकास्ट में बुला के उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, ताकि आप उनको समझ सको और ये समझो कि कौन आपके लिए अच्छा है। बिकॉज है तो बहुत लोग, बट कौन किसमें अच्छा हो जाएगा, किसके साथ आप हाथ पकड़ के चलो, वो जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो आज बहुत अच्छा लगा, आप लोग इतनी देर से बात कर रहे हैं, मेरे को भी कुछ मौका मिला कहने का। एंड आई थिंक नीरव सर अभी स्पीकर है, आई वुड लव टू लिसन टू Yes, थिंग्स फ्रॉम हिम so आल्सो। तो थैंक यू गाइस। absolutely we have a bonus guest today. I mean, नीरव सर हमारे बीच में सर। आई एम अ बिग फैन पर्सनली, पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ। इट्स अमेजिंग टू टॉक टू यू, प्लीज सर। Thank you, brother, and thank you, Chandra. Thank you, Sagar, for quoting me. And I was just referring to Chandra कि वो फैन के ऐसा कुछ नहीं होता है. We all are family. एंड सागर भाई से भी मैं मिला था बॉम्बे में, एंड जस्ट जहाँ पे वो रेफर कर रहे थे, वो प्रोडक्ट का नाम है सॉर्बिटॉल। तो बेसिकली अगर आप हर एक जन जो शायद कोई अभी ब्रश करता है, जनरली जो सब लोग को आदत होती है कि लोग रात को भी ब्रश करके सोते हैं और सुबह तो ऑब्वियसली सब करते हैं, प्लीज एक बार जाके अपने अपने टूथपेस्ट में देख लीजिए कि वो प्रोडक्ट कौन सा है। दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट विच विल बी बाय नेम इन द रॉ मटेरियल ऑन द टूथपेस्ट के ऊपर। आई एम ऑडिबल ना? यस यस, यू आर सर। या तो एक कैल्शियम कार्बोनेट रहता है जो जनरली व्हाइट कलर का रहता है, जो कैल्शियम जनरली वो उससे आता है। एंड सेकंड इज अ सॉर्बिटॉल विच इज अ स्वीटनिंग एजेंट। हर प्रोडक्ट के अंदर वो रहता है, एंड मोस्टली टूथपेस्ट के अंदर रहता ही है, चाहे वो 5 रुपए का हो, 50 रुपए का हो, 100 रुपए का हो या 500 रुपए का हो। तो हर प्रोडक्ट के अंदर ये प्रोडक्ट रहता ही रहता है। एंड एज आई सेड कि एक ही कंपनी है जो ये प्रोडक्ट बहुत ही लार्जर स्केल पे बना रही है। सो दिस इज अ प्रोडक्ट। सो बेसिकली हम लोग जैसे ऐसे ही बात कर रहे थे, एंड सेकेंड जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि जू बीच में हम लोग जब भी जा रहे थे और घूम रहे थे, सो वहाँ पे भी जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के लिए मैंने कि वहाँ से एक कंपनी जा रही थी, तो ट्रक जा रहा था जिसके ऊपर एक नाम लिखा हुआ था, डैश वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करके। आई डोंट वांट टू नेम्स अननेसेसरी, आई एम नॉट ओनिंग एनीथिंग, बट स्टिल आई जस्ट वांटेड टू टेल हिम कि देखो ये एक ही कंपनी है। जनरली है ना, अगर आप देखोगे तो डर्टी जॉब्स जो बोलते हैं ना जिसको, वैसे ही वन ऑफ दिस इज ऑल्सो डर्टी जॉब्स, बट यू डोंट नो दिस डर्टी जॉब इज अ मल्टी बैगर कंपनी। बिकॉज जनरली क्या होता है कि व्हेन दिस टाइप ऑफ कंपनी एग्जिस्ट, तो इसमें क्या हो जाता है कि ये सब लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें टेंडर लेना, इसके साथ में पूरा काम करना, फंडामेंटली इसका डेट फ्री होना,
काफी सारे लोग इसके अंदर जो इन्वेस्ट करते हैं, फंड इंस्टीट्यूशन या फिर DIIs, फिर या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, तो ये काफी सारी चीजें भी हमें देखनी होती है। तो सब कंपनी ये सब कर नहीं पाती है, तो इसलिए मैंने उसको बताया था कि ऐसी एक कंपनी है जो लिस्टेड सेगमेंट में है और वो ये काम कर रही है। तो जस्ट जो सागर रेफर कर रहे थे, तो उसके लिए मैं जस्ट बताना चाह रहा था वो। तो आई एग्री विथ चंद्रा कि फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों अलग अलग हैं, दोनों का माइंडसेट अलग अलग होता है और दोनों का नजरिया अलग अलग होता है देखने का। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आप फंडामेंटली कंपनी में अगर हो, चाहे अगर एक एक कोई भी, अगर आप टेक्निकल भी अगर समझो आप फॉलो करते हो कि हाँ भाई मैं सिर्फ टेक्निकल करता हूँ, मुझे फंडामेंटल के बारे में अगर कुछ भी नहीं आइडिया है, चलो नो प्रॉब्लम। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर उसमें भी अगर आप है ना, लाइक 500 करोड़ या 1000 करोड़ आपके जो स्कैनर्स होते हैं इन द टेक्निकल ऑल्सो, अगर आप उसके अंदर भी यही कंपनीज को रखोगे ना, तो इवन इफ यू गो रॉन्ग, दिस इज माई व्यू, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, and I think Ravi sir is also there with us. He will also help us because he is also good torch bearer on this. So uh, अगर आप 500 to 1000 करोड़ प्लस की कंपनी के अंदर जाके सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस करोगे, एंड इवन इफ यू गो रॉन्ग बिकॉज ऑफ सम यू कैन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के कारण भी, तो भी आप दूसरे तीसरे दिन आप अपना जो लॉस है या मार्जिन जो भी है वो रिकवर कर पाओगे। बिकॉज दैट कंपनी डेफिनेटली, अगर 500 करोड़ या 1000 करोड़ प्लस कंपनी है, तो उसके अंदर कुछ तो होगा फंडामेंटल्स कि भाई वो कंपनी आज इतना सारा अगर कर पाई है। ये मेरा एक व्यू है जो न्यू ट्रेडर के लिए, जो सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर काम कर रहे हैं और टेक्निकल्स के ऊपर ही आगे करना चाहते हैं, अगर फंडामेंटल्स को नहीं पकड़ के। बाकी फंडामेंटल्स का तो कोई ऐसा मार्केट कैप होता नहीं है। आज अगर 100 करोड़ की कंपनी है, कल वो अगर आप उसको देखोगे तो मल्टी बैगर बन के वो 10,000 करोड़ की, लाख करोड़ की कंपनी भी बन सकती है। तो फंडामेंटल के लिए ऐसा कोई यू कैन नॉट से कि मार्केट कैप होता है। यू हैव टू ओनली डेवलप, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली सी इट एंड कॉन्स्टेंटली सी द ग्रोथ ऑफ द कंपनी, और वो कल उठ के वो फंडामेंटली ग्रो करते 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 डेफिनेटली आपके सामने ही वो मल्टीबैगर बन जाती है। जिस तरह से उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि साजल कपूर सर ने 70 रुपीज में लॉरस लैब लिया था, तो आज लॉरस लैब 700 गया था। भले आज वो काफी सारे यू कैन से कंट्रोवर्सीज में जो अभी ट्विटर पे चल रहा है, बट आई स्टिल बिलीव फंडामेंटली कंपनी इज स्टिल गुड। एक्विजिशन मोड उनका चालू है, कैपेक्स आ रहा है। सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग बाय और सेल एनीथिंग, आई एम जस्ट गिविंग अ एग्जांपल कि फंडामेंटल जो कंपनी होती है वो एक बार थोड़ा ब्रीथर तो लेती है। तो कहीं ना कहीं यू डोंट हैव टू बी नेगेटिव बायस्ड आल्सो इन एनी टाइप ऑफ कंपनी। आज दीपक नाइट्रेट अगर आप देखो 3000 से वो 2100 आ गई है, और अगर आप कहीं पे भी अगर टेक्निकल चार्ट्स में भी देखोगे तो सब लोग बोलेंगे वो आई थिंक हेड एंड शोल्डर कुछ पैटर्न बना रहे हैं, और उसके कारण वो शायद और भी नीचे जाएगा, जा सकता है, क्योंकि उसके आगे भी ट्रिगर पॉइंट्स है ना। हो सकता है शायद वो नीचे और भी जा सकता है, मे बी आगे का क्वार्टर भी में शायद अच्छा ना आ सके बिकॉज ऑफ द मार्जिन प्रेशर, या अगर वो फिनॉइल का भी कुछ ना कुछ जो प्राइस है वो नहीं बढ़ रहा है, तो रॉ मटेरियल का जो भी है वो प्रेशर बढ़ रहा है। आज राइजिंग सी फ्रेट चार्जेस है, इफ दे आर नॉट एबल टू पास ऑन टू द कस्टमर, तो वो हो सकता है इन ऑल द केमिकल कंपनीज। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है, एंड टेक्निकल ओनली गिव्स यू द इंडिकेटर कि हाँ भाई ये प्राइस ऐसा हो सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि फंडामेंटली कंपनी इज गुड और बैड। सो फंडामेंटली एज चंद्रा करेक्टली सेड, तो मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली आप अगर कन्विक्शन है उसमें, तो आपका उसमें कभी भी रॉन्ग नहीं जाएगा। यू विल ऑलवेज फाइंड एज अ अपॉर्चुनिटी टू एड इनटू द डिप्स because you have already studied the fundamentals of the company very well. If you are studying it properly, तो आपको मालूम है कि भाई ये अगर गिर रहा है 5-10% भी गिर गया है, अगर कोई भी एक्स रीजन की वजह से मार्केट खराब है या फिर whatever, तो आप उसमें ऐड करोगे, आप उसमें डर के निकल नहीं जाओगे क्योंकि आपने वो फंडामेंटल्स देखे हैं उसके। तो ये एक छोटा सा एक मेरी तरफ से एक व्यू था। आई मे बी टोटली रॉन्ग एंड यू मे ऑल्सो नॉट अग्री, बट एक छोटा सा व्यू था मेरा एक इस पे। Absolutely. नहीं सर, एक छोटा सा व्यू नहीं, दिस इज अ ब्रिलियंट एनालिसिस। आई मीन आई एम रियली थैंकफुल आपका इस ब्रिलियंट एक्सप्लेनेशन के लिए। इनफैक्ट आज ही मैं, एंड वेरी सिमिलर टू दिस व्हाट यू सेड अभी जस्ट नाउ, मेरे एक मेंटर हैं
and I was just talking to him today, and today itself he said कि जब भी market 2% गिरता है तो मैं एक अच्छा खासा load up करता हूँ उसको, जो भी fundamentally strong मेरे पास है. Correct. तो absolutely sir, and thank you so much sir हमें join करने के लिए. Thank you. Thank you very much. And really, thank you very much for organizing this space also. And thank you, Chandra, and thank you, Sagar. Right. Sagar, I think उनको कुछ technical difficulties की वजह से he dropped off, but I'm trying to invite him again. I'll also try to take this opportunity to invite all of you. हम लोगों का we have a thing going on called Daily Rumble, जिसमें कि हम लोग हर रोज एक ट्वीट जाती है. अभी भी अगर हमारी प्रोफाइल पे जाओगे तो आई थिंक दिस विल बी द थर्ड ट्वीट फ्रॉम टॉप, जिसमें ऑल यू हैव टू डू इज इन द कमेंट्स ऑफ दैट ट्वीट यू हैव टू जस्ट नेम वन स्टॉक जो आपको लगता है कल के ट्रेडिंग सेशन में सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा. सो टॉप 5 पीपल हु guess the predict the stock right, they get hard cold 100 rupees cash. It's a fun game. It's a way to share information that you have. So please, I would request our guests, esteemed guests, and all our audience to participate in it. It doesn't cost anything, and there are many returns. If nothing else, just go through the entries. Maybe we'll get a good pick. And sir, आप लोग जो महारथी हो हमारे, of course, I request all of you as well to please participate in it. Can you repeat once because technical error से मैं exit हो गया issue. Right. So I was just talking about we have a competition about before that Nirav sir explained us very nicely about sorbitol जो कि आप Colgate के बारे में. Yeah, वहाँ तक मैं था दोनों चीज मैंने सुना था. I noted down. Yeah, and after that फिर सर ने भी हम लोगों को बहुत अच्छा एक पूरा he gave his own point of view on technicals versus fundamentals. I'm sure we'll have a recording of this and we'll try to release it as soon as possible, including all of your 4 of your views, and this would be amazing. मतलब this has been one of the best sessions ever, I think. And उसके बाद अभी I was just telling about Daily Rumble, जिसमें कि this is our third. Okay. Yeah, I know. Yeah. So please do participate. You know, then you must participate. Sure. All right. Cool. Thank you so much, everybody, for joining us.